Hi everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome back to my YouTube channel Manu Ishu ACCA classes. So in today's video, we are going to do short question of ABC costing. So if you're watching my video for the first time, please don't forget to hit the bell icon and don't forget to subscribe my channel as well. और मैं इंस्टाग्राम मेरा आईडी जस्ट बना हुआ है, यू कैन फॉलो मी देयर और यू कैन आस्क योर क्वेरी whatever you have by texting me. मेरा ट्विटर अकाउंट भी है एंड एज वेल एज फेसबुक पेज भी है. ओके, सो वेर एवर यू फाइंड सुइटेबल यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इफ you have query related to any questions. Okay, so now first questions. Okay, so question number is 29, right? Okay, so let's read out the questions. Just a second. Okay, okay. So first question is, which two of the following are not usually a characteristics of modern manufacturing environment? Okay, so not a characteristics, be careful here, the question is asking not a characteristics. Okay, so among the option we have to find the two which are not related to the modern manufacturing environment. So in the modern manufacturing environment, okay, so now first talk about the traditional environment. In traditional manufacturing environment, the organization was a labor intensive. There lots of labor are involved in manufacturing the product, right? Whereas if you look at the modern manufacturing environment, where it is a capital intensive, right, where most of machines are used to manufacture the product rather than the labor. So here in traditional manufacturing environment, direct cost because of more labor are involved in manufacturing the product, so direct cost being higher in the total cost as compared to the indirect cost, especially overhead. But nowadays, as the organization is capital intensive, using more machines, technology to manufacture the product, that's the reasons nowadays overhead has been increased as compared to direct cost in the total cost of the product. So what we have to do is, uh, so that's why we have to allocate these overhead on the fair basis, and ABC costing is one of the technique which helps to allocate this overhead fairly to the product. Okay, so first is shorter production cycles. Yes, due to the modern manufacturing environment, as I told, due to being a capital intensive, due to being a most of machines, more machines are used to manufacture the product life cycle has become shorter. ओके, सो पहले क्या होता था कि लेबर प्रोडक्ट बनाते थे, स्टॉक में रखना पड़ता था टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट. बट नाउ इट इज व्हाट हैपन, नाउ इट इज कंपनी मैन्युफैक्चर व्हेन दे रिसीव द कस्टमर ऑर्डर, है कि जिस JIT सिस्टम है, JTI सॉरी, जस्ट इन टाइम, JIT. ओके, हाँ. सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स. सो उसकी वजह से क्या हुआ, नाउ इट इज प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल हैज बिकम शॉर्टर. सो वन इज द फीचर्स, राइट. सेकेंड, a greater emphasis on quality. Modern manufacturing environment, they basically target their customer. They basically manufacture the product. They also ensure that it is proper quality as per the customer requirement, and the price is also competitive. So all the focus of the technique is on on their customer. So this is also the features. Third, a greater use of advanced technology. Yes, nowadays being a capital intensive, lots of technology has been used to manufacture the product. As a result of which what happen, it saves the time and काम भी जल्दी होता है. and ऊपर से क्या होता है कि like हायर क्वालिटी, आई मीन हायर क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. आप यूट्यूब पे वीडियो देखो या फिर आप फेसबुक पे भी आपको नोटिफिकेशन आते होंगे, लाइक जैसे कि एक मैंने ही कुछ वीडियो देखा था, कुरकुरे का पैकेट बनते वक्त सारे काम मशीन से हो रहे थे. इवन तो उस बॉक्स कार्टून को बनने के बाद उठा के भी मशीन रख रहे थे, है कि नहीं. सो इससे क्या हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छे से, मतलब लाइक लेबर का तो यूज़ कम हो गया है, लेकिन इससे क्या हुआ है कि लाइक
इफिशिएंसी और बढ़ गई है कंपनी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने को इन द हाई क्वांटिटी अगर चाहिए तो, है कि नहीं? सो दिस इज ऑल्सो द जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना? सो फोर्थ पॉइंट कहता है रिड्यूस लेवल ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ये बात ट्रू है कि ड्यू टू मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन रिड्यूस्ड, दिस इज अ ट्रू, बट पार्टिसिपेशन हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड। एम्प्लॉय आर मोर क्यूरियस, मतलब लाइक चीज़ों को ऑपरेट करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल नया चीज़ कोई लॉन्च ही होता है, टेक्नोलॉजी है कुछ भी, तो कुछ जो होते हैं क्यूरियोसिटी, लाइक वो चाहते हैं कि उसको सीखें और इन्वॉल्व हो उसमें, है ना? तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेंट और इंक्रीज हो गया है, लाइक वो उस चीज़ों को यूज करने का, टेक्नोलॉजी को यूज करने का। सो दिस इज द फॉल्स, ओके। इंक्रीज rigidity in the process due to the modern manufacturing environment, what happened, flexible प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है। ड्यू टू द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट मोर फ्लेक्सिबल हो चुका है प्रोडक्शन प्रोसेस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम जहाँ पे रिजिड था। रिजिड इन द सेंस लाइक इफ लाइक क्योंकि वहाँ पे लेबर सब काम करते थे और कौन कब बीमार पड़ जाए दे डोंट नो, सो व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन एडवांस टू मीट देयर कस्टमर रिक्वायरमेंट और स्टॉक में रखते थे। बट नाउ इट इज व्हाट हैपन, अब तो टेक्नोलॉजी हो गई, जब चाहे तब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड फ्लेक्सिबल है, इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड टाइम कंज्यूमिंग भी पहले से कम है। सो दैट्स वाई नॉट इंक्रीज द रिजिडिटी इन द प्रोसेस, ठीक है। ये लास्ट का स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ओके। आई मीन फॉल्स इन द सेंस नॉट द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट, ओके। ओके, सो 30 A company produces a range of products and uses an absorption costing system. Which two of the following are unlikely to be the consequences of the company switching to the ABC system? Unlikely means not likely to be the consequences. कौन सा reason नहीं है, okay? The first one is indirect overhead will be shared between the product on the fair basis. This is true, as I told, due to being a capital intensive nowadays, more overhead or proportion of the overhead is more in the total cost as compared to direct cost. So as a result of this, it's very it's very important to allocate this overhead on the fair basis to the product, और एक मशीन से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उस पर ओवर हेड फेयरली एलोकेट हो, सो दैट उसका कॉस्टिंग भी अच्छा होगा एंड प्राइसिंग भी अच्छा होगा, सेलिंग प्राइस, है कि नहीं? सो फर्स्ट वन इज लाइकली टू बी द कॉन्सिक्वेंस, है ना? क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर नॉट लाइकली टू बी कॉन्सिक्वेंसेज, सो बी केयरफुल। सेकेंड ऑप्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन विल बी इम्प्रूव, मैंने अभी बोला ना, जैसे लाइक इफ द ओवर रेट को फेयरली एलोकेट कर देंगे प्रोडक्ट पे, इससे क्या होगा, आवर कॉस्ट विल बी ऑल्सो एक्यूरेट एंड उस पर हम लोग मार्कअप एंड मार्जिन जोड़ के वी कैन एक्यूरेटली कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी इन द कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, कंपटीशन को डील करने के लिए। सो ये भी इम्प्रूव हो सकती है। सो बोथ आर द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, the prime production cost of each product will fall. अब now prime production cost means all direct cost, all direct cost मतलब जैसे like direct material, direct labor, direct expenses, but ABC तो डायरेक्ट को कुछ करती नहीं है, they even don't touch the direct like cost, they only deal with the overhead को कैसे allocate करना है, how to allocate the overhead fairly between the product, वो उसको ही सिर्फ देखती है। So this is not the likely consequences of the switching to ABC, right? Okay. Okay, fourth, cost control on indirect cost will be harder to achieve. एक सेकेंड है, ओके। क्या बोल रहा है, कॉस्ट कंट्रोल ऑन इनडायरेक्ट ओवरहेड विल बी हार्डर टू अचीव. This was happened in case of a traditional system, but nowadays due to ABC system it was quite easy to achieve. Just we have to find out the cost driver and इसको cost pool के according OAR calculate करके we used to allocate as the जो भी हमारा cost driver के according we used to allocate those overhead cost to the product, राइट। सो ये भी हमारा दो मिल चुका एंड दिस वन इज नॉट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। अब लास्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट विल चेंज ऑब्वियसली। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या था ना, एक वॉल्यूम या मशीन आवर लेबर आवर उठा के वही यूज़ करते थे एंड उसके अकॉर्डिंग लाइक इक्वली जो भी मतलब लाइक आता था कॉस्ट एंड उसको एलोकेट करते थे। बट इन एबीसी में क्या होता है,
अब जैसे कि एक मशीन है, एक मशीन से ही आपका लाइक ABC प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर, बट इस क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, या फिर जैसे कॉस्ट ड्राइवर हमारा है नंबर ऑफ सेटअप, तो नंबर ऑफ सेटअप के अकॉर्डिंग ही लाइक वो आपका कॉस्ट एलोकेट होगा, ओवरहेड है कि नहीं। अगर ट्रेडिशनल यूज करते तो वो मतलब लाइक ऑलमोस्ट इक्वल भी हो सकता था, ऊपर से हल्का हो सकता था, बट ABC के क्या क्या होता है कि लाइक जितना अब जो कॉस्ट ड्राइवर है उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो क्या होता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ईच प्रोडक्ट का चेंज होता ही है। ठीक है, आगे एग्जांपल करेंगे तो हम लोग और क्लियर हो जाएगा इसका। सो बट दिस इज द लाइकली consequences ऑफ द switching to ABC. Okay, 31. What is the inspection cost per unit of product alpha? Select from the list below. So okay, now we have to calculate the inspection cost per unit for the only product alpha, a company which makes two product. Okay, so company is making two product. अभी आपको क्लियर हो जाएगा, लाइक जैसे अभी बताऊंगी। 31. प्रोडक्ट कंपनी दो बना रही है, नेम इज अल्फा एंड अदर इज जेटा। ओके, एंड total inspection cost is, I will write it here. Okay, so it's 250,000. ठीक है। ओके, सो नाउ कंपनी मैन्युफैक्चर यूनिट कितना कितना बना रही है, लेट्स नोट डाउन दैट ऑल्सो। यूनिट्स, ओके, यूनिट्स कितना 2500 and 8000 of Jetta. So all together company is producing how much unit? इस मतलब दोनों प्रोडक्ट को एक मशीन से मान लो बना रही है तो 10,500 यूनिट बन रही है ना। तो machines hour per unit, what we have given, machine hours per unit given, right? And which is 1 for the alpha and 1.5 for the Jetta. After that we do have given, just wait, let me add the row. Okay, so we do have given units per batch, right? And inspection per batch. Okay. So here we have 500 and 1000 and 4 and 1. Okay, just I have copied the data, nothing else I had it. Now a company which makes two product alpha and Jetta use ABC costing to absorb its overhead. It has recently identified a new overhead cost pool for inspection cost and has decided that the cost driver is number of inspection. So now company is using the ABC costing technique. So now this is our cost pool. Number of inspection cost is cost pool, and the cost driver for this cost pool is number of inspection as told in the questions. Okay, so this is our cost driver. ठीक है। अब चीज तो पता चल गया। नाउ अब नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना है, दैट थिंग वी नीड टू नो। बट हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट, ओके, प्रोडक्शन वॉल्यूम, मशीन आवर्स, यूनिट पर बैच, इंस्पेक्शन पर बैच है, नॉट द पर यूनिट, ये चीज ध्यान देना है। सो नाउ उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, नंबर ऑफ बैचेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैचेस, वो तो पता होना चाहिए। एंड इन क्वेश्चन इट ऑल्सो टोल्ड दैट यूनिट पर बैच, मतलब एक बैच में 500 यूनिट्स है। ओके, ये सब यूनिट्स है। ओके, दिस ऑल आर यूनिट्स। ओके, सो नाउ in question told that key cost driver is number of inspection, but in question it's not given the number of inspection, but it's given the inspection per batch. The per batch we have to find out, and for that we have given information that in per batch we have 500 unit product. So all together company is producing alpha product 2500, and if we will divide this with 500, we will get the number of batch for the alpha. Okay, and similarly for the Jetta we do have a number of batch 8. Okay, I hope यहाँ तक क्लियर है। अब इसको ऐड कर देते हैं, दिस इज ऐड भी क्या करना है, एक मिनट।
अब तो ये तो हो गया. अब नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक बैच में 4 इंस्पेक्शन हो रहा है, इट मीन्स 5 बैच में कितना होगा. सो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन अब पता लग जाएगा. ठीक है, इंस्पेक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो. इफ कहीं पे डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, डू टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट. ओके. सो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हाउ कैन वी फाइंड आउट. अब 1 बैच में 4 इंस्पेक्शन हो रही है. इन 5 बैच ऑल टुगेदर इट विल बी 20. इट्स जस्ट a unitary method, nothing else. Okay, so we got it, our inspection, number of inspection for the alpha and zeta. Okay, and which is our cost driver. So now we will calculate total of these two amount. Okay, so total inspection कितना है, 28 हुई है, right. So number of inspection is 28. so इसके अकॉर्डिंग हम लोग OAR कैलकुलेट कर लेंगे. OAR क्या हो जाएगा इस यहाँ के लिए, इट विल बी दिस डिवाइड बाई दिस, मीन्स 8928 पर इंस्पेक्शन. ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर हो. अब नाउ, अब तो ये तो पता चल गया. सो अब इंस्पेक्शन कॉस्ट को एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट में. ठीक है. प्रोडक्ट में अगर टोटल की बात करें तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इन अल्फा इज 20. अगर पर इंस्पेक्शन कॉस्ट इतना है तो अल्फा के लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी 17,000, नहीं 1,78,571. ठीक है. एंड सिमिलरली इसके लिए भी करते हैं, पर इंस्पेक्शन इनटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शन. सो ये दोनों को जोड़ के आपको टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे है. नाउ अब क्वेश्चन इज आस्किंग इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. सो नाउ इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट है ना. सो पर इंस्पेक्शन INS. अब हम लोग टोटल कॉस्ट पता है, एंड वी विल डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन द ईच प्रोडक्ट. जो भी मतलब जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया अल्फा का नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसे डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट आवर नंबर इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑप्शन. ओके, 71.43. ठीक है यहाँ तक. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. मैं जितना हो सके मतलब जितना हो रहा है उतना समझा रही मैं तो. ओके. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ABC एंड कॉस्ट ड्राइवर. ठीक है. कॉस्ट ड्राइवर इज एनी फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी. ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन है कि नहीं. और इसको ये भी कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर मतलब ऐसा फैक्टर विच विल इन्फ्लुएंस लेवल ऑफ कॉस्ट भी. ठीक है, ये भी सेंटेंस रहता है. सो दिस इज ऑल लाइक ए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है. कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारा पहले हम लोग ABC में क्या करते हैं, वॉट एवर द कॉस्ट है जो कॉमन नेचर का, उसको ग्रुप टुगेदर करते हैं. ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट पुल. एंड उस कॉस्ट पुल को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर जो ड्राइविंग, जो मतलब उसमें चेंजेस ला रहे हैं. जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, लाइक प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट का एक कॉस्ट है. ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट का कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट पुल हो गया. उसको कौन सा ऐसा फैक्टर है विच इज ड्राइविंग दोज लाइक ब्रिंगिंग द चेंजेस इन दोज कॉस्ट पुल, या फिर जो उस एक्टिविटी में चेंजेस ला रहे हैं. तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, परचेज ऑर्डर. जितना परचेज ऑर्डर होगा उतना प्रोसेसिंग काम बढ़ेगा परचेज डिपार्टमेंट का और कॉस्ट बढ़ेगा, राइट. सो एक नंबर ऑफ ऑर्डर हमारा कॉस्ट ड्राइवर हो गया. सो कॉस्ट ड्राइवर वही एक्टिविटी कहो या फिर फैक्टर कहो जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है. कौन से कॉस्ट को, कॉस्ट पुल का. ठीक है, तो पहला वाला सही है. सेकेंड वाला अब आता है. सेकेंड वाला है फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड केस, अगेन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. For long term variable overhead cost, the cost driver will be volume of activity. फिर से पढ़ते हैं. For the long term variable overhead cost, the cost driver will be the volume of activity. ये बिल्कुल करेक्ट है. अब कैसे, देखो, फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड, फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड, क्या हो रहा है, फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, the cost driver will be the volume of activity.
है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी क्या है, इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द एक्टिविटी दैट द बिजनेस इज इंगेज इन, जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ मशीन आवर यूज और द नंबर ऑफ लेबर आवर वर्कड, है ना। as the level of activity increase, the total variable overhead cost will also increase. This is because variable overhead cost are cost that vary with the level of activity or production, है कि नहीं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस होता है, जो कि हमारा एग्जांपल है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट का, and which increases as more units are produced or more machines are used. Therefore it is important कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा appropriate cost driver so that कि accurately allocate हो ये सारे cost in the long term, ठीक है। सो बेस आप यही खुद ही सोचे ना, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट, इन दैट केस आपका जो भी लाइक नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप हो या फिर और भी हमारा कॉस्ट ड्राइवर है ना, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इससे भी ज़्यादा हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी होगा, जैसे कि प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर मशीन्स आवर यूज, सो लेबर आवर यूज, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड को एलोकेट करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, थर्ड, traditional absorption costing tend to under allocate overhead cost to the low volume product। अब ये भी बात सही है, ट्रेडिशनल वॉल्यूम में क्या होता था, मान लो जैसे यहीं पे इस 2500 प्रोड्यूस हुआ है, 8000 प्रोड्यूस हुआ है, तो वेरिएबल अगर मान लो कि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, ओ ए आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओ ए आर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, इसका इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं समझाने के लिए, ये हमारा लाइक ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, मतलब आई मीन टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट विच इज ओवरहेड, ऑल्सो ए काइंड ऑफ ओवरहेड, एंड वी विल डिवाइड इट विद टोटल यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 23.089, ये हमारा ओवरहेड आ गया अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको एलोकेट करते हैं, इसको एलोकेट करेंगे इनटू करके लाइक अब यूनिट से, है ना, क्योंकि पर यूनिट डिवाइड किया है तो यूनिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के लिए। एंड सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी कैलकुलेट करते हैं ओ ए आर इंटू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो अल्फा में कितना गया, अल्फा में, अच्छा इधर आ गया, एक सेकेंड इधर डाल देती हूँ एक सेकेंड, ये वो अटक गया ये ठीक है यहाँ तक, ओके। तो ये हो गया आपका, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ, ओके, आई होप ठीक है। ओके, सो मैं कहाँ थी, सो अब देखो यहाँ पे हम लोग ने टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट को एज पर द हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग एलोकेट किया, तो यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं, आपका 59,523 आ रहे हैं, जो कि हम लोग लाइक अगर एबीसी के अकॉर्डिंग एलोकेट करें तो हमारा इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है, तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर जो लो वॉल्यूम है उसमें क्या होता है कि अंडर एलोकेट द ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, वही बात है ना, लो वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम अल्फा है, कम प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर एलोकेट हो रहा है ओ आर, जो कि हम लोग एबीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आ जाता है 1,78,571.43, बट ट्रेडिशनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है 59,523.81, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये मैंने समझाने के लिए कैलकुलेट किया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था। ओके, okay, so next 33, a company makes a product A and B, it is experimenting with the ABC production setup cost are 12,000 and total production will be 20,000 unit for each of the product A and B, each run is 100 unit of A or 500 unit of B, using the ABC costing, what is the setup cost per unit of A, give your answer in the nearest to the nearest cent, ठीक है। अब इसको करते हैं और क्लियर हो जाएगा एबीसी आपको। ओके, सो
Okay, so 32 nahi hai, this one is 33, right? Okay, 33. So now company makes two product, right? Product name is A and other is B, and वो company is experimenting with ABC costing. So production setup cost, ठीक है. Let's move it forward. So total we have total 12,000. Okay, 12,000. Okay. And total unit produced will be 20,000 unit each, means 20,000 here also and 20,000 here also units. ठीक है. And each run means production run या फिर production run यहाँ पे 1000 यूनिट हो रही है इसमें फॉर द प्रोडक्ट ए, एंड यहाँ पे हो रही है 5000 यूनिट. ओके. तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना हो जाएगा? प्रोडक्शन रन, सो एक रन में 1000 बन रही है, एक रन में 1000 हो रही है, तो कितना रन चाहिए 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए? सो 20, ठीक है. एंड अगेन फॉर द बी वी विल हैव 4. सो टोटल रन इज, यहाँ तक ठीक है. ओ 12 कैसे आ गई? ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो. आगे पढ़ते हैं. यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, व्हाट इज द सेटअप कॉस्ट पर यूनिट? ओके, सो नाउ ये जो सेटअप कॉस्ट है, दिस इज आवर कॉस्ट पूल, ठीक है. एंड इसका कॉस्ट ड्राइवर कौन है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ठीक है. तो दिस इज हम लोग को पता चल गया कॉस्ट पूल कौन सा, हमारा कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है. नाउ इन दोनों को यूज करके वी विल कैलकुलेट OAR. सो हाउ डू वी गेट दैट? First we will take the total production setup cost and divide it by number of production runs, which is 24 in our case, so 500. Okay, now this is OAR, and on the basis of this we have to allocate the production cost, production setup cost. अब allocate करते हैं production setup cost. We will take the OAR and multiply it with the production run. यहाँ पे लिख देती हूँ पर, दिस वन इज आवर कॉस्ट, सो लेट इट बी इन डॉलर, एंड पर प्रोडक्शन रन. ओके, सो 10,000, देन अगेन 500. नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर द बी इज 4. ओके, सो नाउ ये भी 12 आना चाहिए इन दोनों को जोड़ के. ओके, सो नहीं आया, यू हैव डन मिस्टेक. ओके, ये हो गया. सो नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग सेटअप कॉस्ट पर यूनिट. व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? सेटअप कॉस्ट per unit. And what the unit we have in produced for the product A? 20,000, and similarly for the product B it's 20,000, and so we will get the setup cost per unit for the A 0.50 and for the B 0.10. ठीक है. So question is asking for the product A, so आप product A को लेना. Okay, so 33 done. So now 34. Which of the following statements are true regarding ABC costing? Okay, so cost pool is an activity which consume resources and for which overhead costs are identified and allocated. मैंने बोला भी था. So whatever similar nature के जो cost होते हैं उसको group करेंगे, and grouping together this cost को कहते हैं हम लोग cost pool. So this is what sentence is explaining. Cost pool is an activity which consume resources and for which overhead costs are identified and allocated. ठीक है. और आपका
Second, activity costing, ABC costing, OAR is calculated in the same way as absorption costing OAR and will result in the same OAR being calculated for the each cost pool. अब देखो हम लोग ने अभी ऊपर मैंने दिखाया था कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अगर यूज करते इन दैट केस हमारा यहाँ पे OAR क्या आता, हम लोग टोटल इंस्पेक्शन लेते हैं, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट, और वो है ये रहा ये इंस्पेक्शन कॉस्ट, और डिवाइड मान लो कि टोटल यूनिट हमारा वॉल्यूम हमारा बेसिस से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो OAR 23.81, बट ABC कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा OAR कितना आया था 28.57। सो सेम है क्या? सेम तो नहीं है, सो डिफरेंट है। सो वो डिफरेंट हो सकता है, सेम नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, so 35, a company use activity based costing to calculate the unit cost of its product. The figure for the period 3 are as follow: production setup cost 84,000, total production cost is 40,000 unit for each of the product A and B, and each run is 2,000 unit of A और 5,000 units of B. What is the setup cost per unit of B? ये सेम क्वेश्चन है as we did in the 30 कितना नंबर था ये 33, सेम है, बट यहाँ पे आपका बी का पूछ रहा है। सो आई मस्ट से दिस की आप ट्राई करो, इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो। ओके, सो सेम है। ओके, सो 36 करती हूँ। ओके, 36 कर दूंगी ऑब्वियसली, देखते हैं 36, ठीक है। ओके, लेट्स रीड आउट ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ OA of overhead absorption based on labor hours, what is the overhead cost per unit for each unit of product alpha? So now this is basically हम लोग को बोल रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करने को एंड टू कैलकुलेट द OAR overhead cost per unit. Okay, so क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC कंपनी मैन्युफैक्चर द ट्रू प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट्स alpha and product beta, both are produced in a very labor intensive environment. लिखते भी चलते हैं सो दैट कि क्लियर हो जाओ। ओके, सो कंपनी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्ट नेम क्या क्या है? प्रोडक्ट नेम इज, वन इज अल्फा एंड अदर इज बीटा। ओके, एंड बोथ प्रोडक्ट आर वेरी लेबर इंटेंसिव इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल में क्या था, लेबर इंटेंसिव था ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूजेज द सिमिलर प्रोसेस, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस होता है। अल्फा एंड बीटा डिफर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम डिफर है। बीटा इज हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, ओके, बीटा का हाई वॉल्यूम है, वाइल अल्फा इज ए लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। एंड डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट इनपुट आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज आर फॉलोज। ओके, सो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, ये सब डायरेक्ट लेबर दिया है। एनुअल आउटपुट, आउटपुट इंपॉर्टेंट है, सो लिख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट प्रोड्यूस बाय द अल्फा इज 1200 एंड बीटा का 12,000 यूनिट्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन बोला भी है कि अल्फा इज लो वॉल्यूम प्रोडक्ट एंड बीटा इज हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, वो दिख भी रहा है। सो नाउ उसका नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ सेटअप्स, ये सब क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कॉस्ट ड्राइवर है, ये भी कॉस्ट ड्राइवर है ना। और ये तो हम लोग ये भी कॉस्ट ड्राइवर, बट हम लोग उसको ट्रेडिशनल में यूज करते हैं, लेबर आवर, वॉल्यूम, मशीन आवर्स, है ना। सो नाउ अब हमारा नीचे दिया है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट टोटल कितना दिया हुआ है? ओके, सो टोटल यहाँ लिखती हूँ, टोटल। ओके, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज 420,123। ओके, सो दिस इज आवर कॉस्ट। और वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट मतलब इसी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को एनालाइज कर दिया, लाइक वॉल्यूम रिलेटेड इतना है, परचेज रिलेटेड इतना है, सेटअप रिलेटेड इतना है। सो ये अगर हम लोग ABC कॉस्टिंग यूज करते हैं, इन दैट केस दिस ऑल आर द कॉस्ट पुल, ठीक है।
और वॉल्यूम का होता है ये जितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हुआ है, परचेज का कॉस्ट ड्राइवर होता है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, एंड सेटअप का कॉस्ट ड्राइवर विल बी नंबर ऑफ सेटअप्स, बट वी आर यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड क्वेश्चन ये भी बोला हुआ है एब्जॉर्ब किस बेसिस पे करना है, बेस्ड ऑन द लेबर आवर्स, ठीक है। सो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितना कितना प्रोड्यूस कर रही है, आई मीन कितना कितना आई मीन प्रोड्यूस कर रही है, लग रही है फॉर द प्रोडक्ट अल्फा, इट्स 5 एंड अगेन 5 फॉर द बीटा। सो ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल आवर कितना लग रहा है, टोटल ऑल आवर्स, ओवरऑल आवर्स कह सकते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं, तो 1200 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेंगे, 6000 आवर्स, है ना। एंड दिस वन इज आवर आवर पर यूनिट, ठीक है। ओके, सो अगेन बीटा के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज डन। नाउ टोटल आवर्स कितना लगा हमारा, टोटल आवर्स इज दिस। ओके, सो ये हमारा क्या है, आवर्स है, HOURS। ओके, सो OAR निकालते हैं। OAR कैसे निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। सो ये हमारा हो जाएगा डॉलर पर आवर्स। और ये क्या निकाला हम लोग ने निकाला OAR यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ तक ठीक है। अब इस OAR यूज करके फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको एलोकेट करते हैं, ठीक है, एलोकेट। ठीक है, एंड सो पर आवर इतना लग रहा है ना, इतना कॉस्ट, सो नंबर ऑफ आवर इज फॉर द प्रोडक्ट अल्फा इज 6000। सो ऑल टुगेदर कितना लगेगा यहाँ पे हमारा कॉस्ट आवर से रिलेटेड, ठीक है। ये बीटा के लिए हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके हमारा जितना हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है उतना आना भी चाहिए, चेक करने के लिए, बस एश्योर होने के लिए दैट वी आर डूइंग राइट। ये हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये जो ओवरहेड कॉस्ट है पर यूनिट में पूछ रही है क्वेश्चन। सो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसको कैलकुलेशन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, इस 420, एंड टोटल आवर्स कितना है, टोटल आवर्स 66,000, ठीक है। एंड इसको करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, इसको रहने दो, आप ऐसे ही करो, ठीक है, झमेला हो जाएगा फिर कंफ्यूजन में जाओगे। सो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आई थिंक। सो कितना आया हमारा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट अल्फा इज 31.82। ओके, सो नाउ 37 रिक्वायरमेंट यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। अगेन ट्रेडिशनल मेथड यूज करने को कह रहा है। ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन द लेबर आवर्स, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द ईच प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिट्टा। नाउ प्रोडक्ट बिट्टा के लिए कह रहा है, सेम है क्या क्वेश्चन। ABC company manufacture two product alpha and product beta. Both are produced in very labor intensive environment and uses a similar process. I think क्वेश्चन सेम है एंड वैल्यू भी सेम है सबका। सो सिम यही है हमारा निकाला हुआ है बिट्टा का वैल्यू, 31.82, इसका भी आएगा, सेम तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आया using the activity cost based costing as the method of overhead absorption, what is the overhead cost per unit for the each unit of product alpha। so now अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब ABC costing यूज करो, then find out what is the overhead cost per unit for the product alpha, ठीक है, करते हैं।
Okay, so this one is 8, right? Okay, so copy paste कर लेते हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन काम लग जाए. ओके, सो प्रोडक्ट दो बना रहे हैं यहाँ पे. अगेन हम लोग प्रोडक्ट बीटा एंड अल्फा. कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, अल्फा एंड बीटा, बोथ आर प्रोड्यूसिंग. वही सेम क्वेश्चन है, ऊपर का सारा इंफॉर्मेशन सेम है, डिटो. ठीक है, बट अब यहाँ पे हम लोग को जो एलोकेट करना है फिक्स्ड, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड, दैट विल नॉट बी ऑन द लेबर बेसिस. अब नाउ कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग हम लोग एलोकेट करेंगे. ठीक है, सो वर्किंग करते हैं कुछ 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 कुछ. ठीक है, ओके, सो 1 में वर्किंग करेंगे हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड. वॉल्यूम यहाँ पे वर्किंग में ना पहले कॉस्ट पूल डालती हूँ. ठीक है, दिस वन इज कॉस्ट पूल और ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारा आ जाएगा OAR. ठीक है, यहाँ पे प्ले वो करते हैं. अब हमारा कॉस्ट पूल क्या है? वॉल्यूम है. वॉल्यूम रिलेटेड एक हमारा कॉस्ट पूल है. इसके बाद है परचेजिंग रिलेटेड. आफ्टर दैट सेटअप रिलेटेड. ठीक है. ओहो, मैंने क्या कर दिया? ये तीनों हमारा कॉस्ट पूल है ना. अब इनका फटाफट से कॉस्ट भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना. सो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट पूल कितना है? इसका अमाउंट 100, 1 2 3. ठीक है, या फिर इसको ऐसे करते हैं, जस्ट वेट. हाँ, ये बोल्ड कर देती हूँ. ये हमारा कॉस्ट पूल, एंड दिस वन इज आवर एक और कॉस्ट पूल. ये ठीक है यहाँ तक. और 145,000 यहाँ पे 175,000 एंड दिस ऑल आर कॉस्ट. सो इसको आगे डॉलर साइन डाल देती हूँ. ठीक है. ये हमारा कॉस्ट पूल. अब कॉस्ट ड्राइवर. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा था हम लोगों ने. ओके, सो कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम रिलेटेड इज आउटपुट हो जाएगा. वॉल्यूम रिलेटेड का, परचेज रिलेटेड का नंबर ऑफ परचेजिंग ऑर्डर. उसके बाद नंबर ऑफ सेटअप्स. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ड्राइवर फॉर रिस्पेक्टिव कॉस्ट पूल. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो सबको, आई होप. सो नाउ अब इसका प्रोडक्ट को भी सेपरेट करना था. ऊपर चलते हैं एक मिनट. हाँ, सो आउटपुट गिवन. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट हो गया. एंड नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स. इसके बाद नंबर ऑफ सेटअप. परचेज ऑर्डर फॉर द अल्फा इज 75 and for the beta is 85. So total we have 160. Number of setup is 40 for the alpha and 60 for the beta.
So all together we have 100, ठीक है, and this is our total fixed overhead cost, ठीक है. नाउ अब हम वही वैल्यू को नीचे डालते हैं, बस टोटल वाला, ठीक है. सो आउटपुट हमारा टोटल कितना था, निकाला था ना यहाँ पे आई थिंक. ओके, सो आउटपुट वी डू हैव इन टोटल 13,200. number of purchase related number of purchase order 160, and number of setup cost, cost क्या बोल रहे हैं, number of purchasing order we do have 160, number of setups 100. यहाँ तक ठीक है. नाउ OAR कैलकुलेट करते हैं. जस्ट कॉस्ट पुल का कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है. ओके, ये हमारा OAR आ गया. अब इस OAR के अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारा कॉस्ट पूल है इसका कॉस्ट को एलोकेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, दिस इज पर यूनिट, ठीक है, एंड दिस वन इज पर परचेजिंग ऑर्डर, ठीक है, एंड दिस इज पर सेटअप्स, ठीक है. अब volume related OAR is 7.58 and we do have number of units for the alpha is 1200 units. so यहाँ पे volume related for the alpha कितना आ जाएगा 90.91. similarly for the beta OAR इतना and number of units produced is this. so यहाँ पे आ गया, इन दोनों को total must be equal to volume related total cost 100,000 है. so 100,000 गुड, ये हो गया. नाउ परचेजिंग रिलेटेड OAR इज 906.25 into number of purchase order in for the alpha product is okay this. एक सेकेंड, हाँ इसको अमाउंट है ना ये तो okay. Again now for the beta take the OAR of purchasing related and multiply it with the purchase order 85. again setup related OAR is 1750 and multiply it with the number of setup for the alpha, ठीक है. और ये रहा ये. so ओके, सो इसको ऐड करने पे हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वो आना चाहिए विच इज़ 420. इट्स करेक्ट, ये ठीक है. एलोकेट कर दिया हम लोग ने. सो नाउ इसका काम खत्म वर्किंग का. ओके, सो टोटल हमारा ओवरहेड जो एलोकेट हुआ है टू इस प्रोडक्ट, टोटल ओवरहेड कितना आएगा फॉर द अल्फा and this one is for the beta, ठीक है. अब ये टोटल हो गया. नाउ OH पर यूनिट वो कैसे निकलेगा, जस्ट टेक दिस अमाउंट डिवाइड इट विथ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसको भी ऐसे कर दो. ओके, ये डन हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट अल्फा. अल्फा का कितना है 122.55, ठीक है. क्लियर होगा आई थिंक, मैंने पूरा डिटेल में करवा दिया है इसको. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग व्हाट इज द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ईच प्रोडक्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी. इसको भी करते हैं. क्वेश्चन इज 39.
ये भी तो ऑलमोस्ट वैसे ही है ना, कोई नहीं, लेट्स डू इट. ओके, company makes two product. Okay, company is making two product. Product is A and product is B. So using ABC costing, what is the total fixed overhead amount to be absorbed in each unit of product B to the nearest whole dollar? Okay, so units कितने produced हो रहे हैं? Unit produces 1000 for the A and 2000 for the B, है ना. इसके बाद मटेरियल पर यूनिट कितना है? एक सेकेंड, हाँ इसको अरेंज कर दो. ओके, सो दिस वन इज यूनिट्स. ये भी क्या हमारा यूनिट्स है ना. एंड मटेरियल पर यूनिट इज 10, सो दिस वन इज डॉलर पर यूनिट. ये क्या है हमारा $20 पर यूनिट. ठीक है. सो नाउ लेबर पर यूनिट, ये क्या है 5 पर यूनिट. दिस वन इज 20 पर यूनिट. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग. टोटल मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट कितना है? सो हाउ डू वी गेट दैट? यहाँ पे टोटल का एक कॉल्यूम बना लेते हैं एंड इट्स 100 1 2 3. ओके, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या बोल रहा है? मटेरियल परचेज्ड क्या है? एक सेकेंड, हाँ, वॉल्यूम मटेरियल परचेज्ड, ये इसका कॉस्ट ड्राइवर है. तो वो भी निकाल लेते हैं. कितना हम लोग ने प्रोड्यूस किया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स फॉर द ए 10 पर यूनिट है, और कितना यूनिट बनाया हम लोग ने? अब जो कि क्वेश्चन में केजी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कॉस्ट ही लेके चलते हैं. ठीक है. और बी के लिए हो जाएगा 40,000. सो ऑल टुगेदर मटेरियल के लिए कॉस्ट दोनों में कितना पड़ा? ये 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट हो गया. इसके अकॉर्डिंग अगर OAR निकाले तो कितना आ जाएगा हमारा? दिस डिवाइड बाई दिस. ये हमारा कॉस्ट पूल हो गया. ठीक है, ये हमारा, एक सेकेंड, ओके, सो दिस वन इज आवर कॉस्ट पूल, और इनका कॉस्ट ड्राइवर इज मटेरियल. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज है, लेकिन वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो मैंने मटेरियल का जो प्राइस दिया है ना, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज. जो मटेरियल का प्राइस है मैंने वही ले लिया है. ठीक है, ये कॉस्ट ड्राइवर है. ठीक है. OAR निकल गया हमारा. ठीक है. अब मटेरियल कॉस्ट को मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को एलोकेट करते हैं. OAR कितना है? 2. ये क्या है? 2. एक सेकेंड, इसका यूनिट लिखना भूल गई. दिस वन इज व्हाट? दिस इज डॉलर में ही है. एंड ये क्या है? पर डॉलर मटेरियल, पर डॉलर ऑफ मटेरियल, क्योंकि हम लोग ने मटेरियल का कॉस्ट से डिवाइड किया है. वॉल्यूम यहाँ पे तो कितना केजी यूज होगा कुछ दिया हुआ नहीं है ना, सो दैट्स वाई मैंने इसका कॉस्ट लिया. तो पर मटेरियल आया, पर डॉलर ऑफ मटेरियल्स. सो नाउ ए के लिए हम लोग ये 2 इंटू दस से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी के लिए 2 इंटू
इसका मटेरियल पर यूनिट जो कॉस्ट है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ गया। अब बारी है जनरल फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। सो नाउ हमारा जनरल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट पुल हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 180,123, ओके। सो नाउ इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है लेबर आवर्स। अब क्वेश्चन में देखो लेबर आवर्स भी आपको कहीं नहीं दिया हुआ है, सो वी विल टेक लेबर पर यूनिट, ठीक है। उसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए 5 पे कर रहे हो लेबर को, मतलब पर यूनिट के लिए, सो 1000 के लिए इट विल बी 5000। सो ये हमारा सब कॉस्ट है, ये सब हमारा कॉस्ट है। ये भी हमारा कॉस्ट है 5000 एंड 40,000। ये कितना आ गया 45,000, ठीक है टोटल। अब इसको ये तो क्या था हमारा, ओ शिट, नहीं ठीक है, ये कॉस्ट ड्राइवर है ना हमारा, ठीक है। हाँ ये कॉस्ट ड्राइवर है, निकाल लिया कॉस्ट ड्राइवर। अब ओ ए आर निकालते हैं इसका ओ ए आर, ये डिवाइड बाई दिस, सो इट्स हाउ मच पर डॉलर ऑफ लेबर, ठीक है। एंड ये भी हमारा कॉस्ट है, ओके। सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं जनरल फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देती हूँ, एलोकेशन किया है या फिर एब्जॉर्ब करवाया है, जो जो इसका बेसिस था। सो दिस वन इज 4 और कितना पे किया है 5, सो 20 इसके लिए हो गया। कॉपी इसको पेस्ट, नहीं कॉपी पेस्ट से भी नहीं आएगा। सो टेक दिस इनटू आ गया, ये इसको भी एलोकेट कर दिया। नाउ प्रोडक्ट बी के लिए सिर्फ हमारा जो लाइक ओवरहेड खर्चा है वो पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ से ओवरहेड का खर्चा है। सो बी के लिए हमारा हो जाएगा एक तो ये मटेरियल का एंड अदर वन इज फॉर लेबर, सो इट्स 120, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट 40 नंबर। Assuming that company uses number of delivery as its cost driver, what will be the effect on this cost per unit following the change from the absorption costing to the activity based costing? Place the tick in the box in the table below where appropriate. So, ठीक है 40 नंबर करते हैं एंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को ट्रेडिशनल से भी निकालना होगा, एबीसी से भी निकालना होगा, और दोनों में चेंजेस जो आया वो पूछ रहा है क्वेश्चन। प्रोडक्ट एक्स के लिए इंक्रीज डिक्रीज क्या क्या है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके सो company changing its costing system from traditional absorption costing based on the labor hours to the activity based costing. It has overhead of 156,000 which are related to taking the materials delivery information about each product is given below. Total labor cost, each unit of product takes same number of direct hours. Assuming the company's number of delivery as its cost driver, what will be the effect on the cost per unit? Cost per unit, okay, ठीक है। So product पहले x बना रहे हैं, y बना रहे हैं, then z, ठीक है। एंड यूनिट्स कितना है, यूनिट्स प्रोडक्ट का x के लिए है 1000, इसके लिए 2000, 3000 यूनिट्स, ठीक है। डिलीवरी साइज क्या है 200 and 400 and 1000।
सो हमारा ओवरहेड कॉस्ट क्या है, ऑल टुगेदर कितना लगा है, टोटल कितना लगा है ओवरहेड कॉस्ट 156,123. सो दिस वन इज इन कॉस्ट. इसको डॉलर में बदल देते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या कहता है, अगर कंपनी ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रही है तो इसको किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करी, ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर आवर्स. ठीक है. तो हमारा नीचे टोटल लेबर कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 360,000. ठीक है. and we do have a labor hours 45,000 hours. ठीक है. यहाँ तक ठीक है. ओके. सो अब क्वेश्चन में कहा है कि ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, ईच यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डायरेक्ट आवर्स. मतलब मतलब जितना टाइम लग रहा है एक यूनिट बनने के लिए वो सेम होगा. मतलब आई मीन सॉरी, जितना भी यूनिट बन रहा है प्रोडक्ट का, एक यूनिट जो है ना कोई भी प्रोडक्ट का सेम टाइम ले रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर. ठीक है. तो इसका मतलब ओवरहेड पर यूनिट भी सेम होगा उनका. ठीक है. तो हम लोग यहाँ OAR कैलकुलेट करते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारा जब टाइम सेम ले रहा है तो यूनिट भी सेम, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग एलोकेट करेंगे. एक सेकेंड. हाँ. ओके. सो क्वेश्चन कह रहा है ना कि टाइम पर यूनिट जो भी मतलब प्रोडक्ट बनाओ, एक्स बनाओ, वाई बनाओ, जेड बनाओ, उसका एक यूनिट विल टेक ए सेम टाइम पर यूनिट. ठीक है. तो ओवरहेड पर यूनिट भी क्या होगा हमारा, सेम होगा. तो इसके लिए हम लोग OAR निकालेंगे. जो भी हमारा लाइक फिक्स कॉस्ट है ना, ओवरहेड कॉस्ट, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से. इट्स 26. ठीक है. ये हमारा 26 ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग आया. ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ये हमारा आया. नाउ ABC के अकॉर्डिंग, ABC कॉस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं. एंड क्वेश्चन ने कहा है कॉस्ट पुल क्या है हमारा, कॉस्ट पुल का अमाउंट जो हमारा ओवरहेड है 156,000 को एलोकेट करना है. इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या बोला है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है इसका, कॉस्ट ड्राइवर ये हमारा ओवरहेड. एंड कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पे बोला हुआ है कि कंपनी यूज नंबर ऑफ डिलीवरी एज इट्स कॉस्ट ड्राइवर. ठीक है. तो टोटल डिलीवरी कितने हैं वो पहले निकालते हैं. 1600 डिलीवरीज. ओ सॉरी, ये तो डिलीवरी साइज है. ये हमारा नंबर ऑफ डिलीवरी थोड़ी ना है. ये कह रहे हैं एक डिलीवरी में हम लोग इतना मतलब साइज जो है एक एक्स का 200 साइज है. नंबर ऑफ डिलीवरी तो अलग होगा. क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिलीवरी कहा है, नंबर ऑफ डिलीवरीज. ओके. सो ये हो जाएगा आपका, ये डिवाइड बाई ये कर दो, ये आपका हो गया नंबर ऑफ डिलीवरीज अब हुआ. सो इसको अब ऐड कर देंगे. दिस विल बी ऑल टुगेदर 13 डिलीवरीज. ठीक है. अब ABC के अकॉर्डिंग हम लोग एलोकेट करते हैं. पहले क्या करेंगे, ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिलीवरीज. ठीक है. एंड ये कितना है हमारा, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज 13. अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, OAR इनका. सो दिस डिवाइड बाई दिस. सो ये पर डिलीवरीज कितना आ रहा है. ठीक है. ये हमारा पर डिलीवरीज हो गया.
सो अब हम लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एलोकेट करते हैं, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है एक ए, दूसरा है सॉरी एक्स वाई एंड दिस वन जेड, ठीक है। और हमारा ओवरहेड कॉस्ट पर डिलीवरी कितना है, 12,000। एक्स के लिए आपका नंबर ऑफ डिलीवरी 5। सो कॉपी इस नहीं कॉपी पेस्ट यहाँ काम नहीं करेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा इसको फिर। सो दिस ये हमारा नंबर ऑफ डिलीवरीज, इसको भी लेते हैं फिर इनटू 3। अब ये इसलिए नहीं दिख रहा है, इसको बड़ा करना होगा। सो दिस इज फाइनल फिगर आया, ठीक है। तो अब पर यूनिट निकालते हैं। OH पर यूनिट कितना आएगा, क्या कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 1000, इसके लिए भी इसके लिए भी ऊपर वाले ने हम लोग ने सिर्फ OAR निकाल के छोड़ दिया, एलोकेट तो किया ही नहीं है। एलोकेट भी तो करना पड़ेगा इसको। सो ओवरहेड को एलोकेट करते हैं, ठीक है। सो ये 16 26 है ना, इसमें तो एलोकेट करके भी कोई फायदा नहीं क्योंकि सारे यूनिट का भी सेम ही आएगा। तो ये आपका सेम होगा, दिस वन इज ऑल्सो सेम, ठीक है। अब आपका जेड, अब हो गया ये पर यूनिट आया, पर यूनिट, ठीक है। सो ना अब देखते हैं इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग इंक्रीज को पॉजिटिव रखेंगे और डिक्रीज को नेगेटिव में, ओके। सो पहले अभी ABC के अकॉर्डिंग 60 है और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग 26, मतलब 34 हुआ इंक्रीज। ABC के अकॉर्डिंग 30 है पर यूनिट एंड ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग 26। 4 ABC के अकॉर्डिंग 12 है एंड ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग 26। तो नेगेटिव आया, डिक्रीज हुआ। सो 2 इंक्रीज 1 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग OAR कैलकुलेट किया, जो कि सब सेम है। बोल रहा है कि सारे यूनिट सेम आवर ले रहे हैं प्रोड्यूस होने में, तो पर यूनिट निकालने पे भी कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, इट विल बी सेम। सो उसके अकॉर्डिंग निकाला, फिर ABC के अकॉर्डिंग निकाला, देन दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने, इंक्रीज डिक्रीज, फिर उसके बाद डिसाइड किया। Okay, so last question 41. What is the budgeted machine setup cost per unit of the product R? So ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको यहाँ पे मशीन सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट कर ही देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन तो ही है, ओके। 41 में अब आपको कॉस्ट पुल क्या है हमारा, कॉस्ट भूल लिखा गया है पुल, okay. So DRP Ltd has recently introduced ABC system which manufacture 3 product detail of which are set out below. DRP product produce करता है एंड बजटेड एनुअल प्रोडक्शन यूनिट भी दिया हुआ है, बैच साइज दिया हुआ है, मशीन सेटअप पर बैचेज, परचेज ऑर्डर पर बैचेज, प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट भी दिया हुआ है एंड कॉस्ट पुल भी दिया है। बट हम लोग को सिर्फ बोल रहा है कि बजटेड मशीन सेटअप का कैलकुलेट करने के लिए आपका ये कॉस्ट पर यूनिट कितना लगता है, वो भी प्रोडक्ट आर के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बना रहे हैं, डी, इसके बाद है आर,
एंड पी। सो यूनिट्स क्या है, सारे बजटेड है, बजटेड यूनिट्स क्या है इस 100 1 2 3 एंड 1 2 3 इसके बाद 50,000, ये हमारा यूनिट्स है। बैच साइज दिया हुआ है, अगेन बैच साइज दिया हुआ है, ठीक है। सो बैच साइज कितना कितना है, 100 यूनिट्स, ये 50, ये 25, ये सारे यूनिट्स है, ये सारे यूनिट्स है, ओके। नाउ उसके बाद हम लोग को मशीन सेटअप कॉस्ट को ही एलोकेट करना है। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, मशीन सेटअप पर बैचेस। सो मशीन सेटअप पर बैचेस कितना है, एक बैच के लिए 3 4 6, तो पर बैच के लिए, पर बैच पता का हम लोग को नंबर ऑफ बैच कितना है, BATCH सो एक बैच में 100 यूनिट है, तो हम लोग बना रहे हैं 100,000 यूनिट, तो बैच कितना हो जाएगा 1000। सिमिलरली फॉर द R एंड P भी निकाल लिया हम लोग ने। तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ जो कि कॉस्ट ड्राइवर है हमारा मशीन सेटअप, ठीक है। नंबर ऑफ मशीन सेटअप क्या हो जाएगा, अब जो हम लोग को मशीन सेटअप पर बैच दिया हुआ है वो तो हमारा एक बैच के लिए है। हमारे पास बैच कितना है, नंबर ऑफ बैच इज 1000 एंड इसको मल्टीप्लाई करने पे एक बैच के लिए 3, 1000 बैच के लिए इट विल बी 3000, ठीक है। सो ये सबका निकल जाएगा हमारा। सो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, ये हमारा होगा कॉस्ट ड्राइवर फॉर व्हाट, मशीन सेटअप कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। तो हमारा कॉस्ट पूल क्या है, मशीन सेटअप कॉस्ट, ठीक है। एंड वो कितना दिया हुआ है, इट्स 150 1 2 3,000, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। इसका टोटल निकाल लेते हैं कितना हम लोग ऑल टुगेदर है, ये इट्स लाइक 23,000 है। तो 23,000 करने के बाद OAR निकालते हैं। अब इसका OAR दिस डिवाइड बाई दिस, सो दिस इज पर मशीन सेटअप, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब प्रोडक्ट R के लिए सिर्फ पूछ रहा है ना, तो प्रोडक्ट R के लिए हम लोग मशीन सेटअप कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, मशीन सेटअप कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं प्रोडक्ट R के लिए। OAR 6.52 है एंड नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना हुआ है 8000। तो ये हमारा हो गया टोटल वाला। अब पर यूनिट के लिए निकाले तो पर यूनिट के लिए इस कॉस्ट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस किया, मतलब प्रोड्यूस होने वाली है बजटेड वाला, सो 0.52 पर यूनिट। यही क्वेश्चन पूछ रखा था सिर्फ R के लिए, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू टारगेट कॉस्टिंग। सो अगर वीडियो पसंद आई हुई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा इंस्टाग्राम ID भी लिंक में डाल दी हूँ, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, सो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।